Hello student, how are you all? I hope that you all are fine. Welcome to my YouTube channel. This is Mahesh Shah from Surat. This video is for Standard 6, Subject Social Science, Chapter 3, Citizenship, Part 1. Uh, Welcome to my channel. In last video we discussed about map. I hope that you all like that video very much. Here in this video we are going to talk about citizenship. In this chapter first we start with introduction, then after we understood which institutions are necessary to make a person as a good citizen. Then after we discuss about relations with various institutions. Afterwards, what is citizenship? Then after, what is citizen? Then after we talk about what is citizenship, and finally we talk about how to get Indian citizenship. And in the last, there is a small exercise given for your revision work. So before I start my video, I would like to tell you that you all like the video, subscribe the channel, and specially press the bell icon because when you press the bell icon, ultimately you find new notification of part 2 or any other chapter video. Okay, so that is why in my last video I also request about this. Here I am also telling you that you press the bell icon first. Okay, so लास्ट वीडियो मैप के बारे में हमने पढ़ा था। मुझे बहुत सारे कमेंट्स भी आए हैं, काफ़ी आप लोग को पसंद भी आया था ये वीडियो। अगर जब आपको कोई वीडियो अच्छा लगे तो आप उसके लिए अपने फ्रेंड्स सर्कल में भी बता सकते हैं, और या तो आपके सोशल नेटवर्क साइट के ऊपर भी आप उसको शेयर कर सकते हैं, जैसे फेसबुक है या इंस्टाग्राम है, कुछ भी हो। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चैप्टर 3 सिटीजनशिप, स्टैंडर्ड 6 सोशल साइंस। So, what is important of citizenship, and uh, what is how to get this citizenship? For example, we are calling ourselves that I am an Indian. So that Indian word, that sense about citizenship, that you are a citizen of India. That is why you are an Indian. Here I show you the passport. See the passport. When you are a citizen of particular country, that country issue this passport, and this is the most important proof as a citizen of the country. So, in the beginning of our life, we are not directly become a citizen of India. As we born in a country, and that is why we are an Indian. That is absolutely right and correct thing. But after certain age limit, we become a citizen of the country. When we are having right of the vote, or we pass 18 years of age, then we are officially citizen of this country. With born, it is absolutely right thing that we are we born in a particular country and we are the citizen of that country. But if we talk about some official documents, then passport, election ID card, these are the important documents which prove that we are a citizen of that country. Now, what is the importance of this title, identity, that uh, we identify ourselves as a citizen of particular nation? Because here, when you are living in a particular country, nobody interested in your identity इन द क्राइटेरिया ऑफ द कंट्री, बिकॉज यू आर लिविंग इन अ सेम कंट्री। आप एक ही कंट्री में रहते हो तो वहाँ पे कंट्री से आइडेंटिटी की कोई ज़रूरत ही नहीं होती है। फिर आप अपने स्टेट या तो अपने सिटी या तो अपने विलेज या तो अपने फैमिली से पहचाने जाते हो। पर जब आप कहीं अब्रॉड जाते हो, इंडिया से बाहर जाते हो, तब वहाँ पे पता चलता है कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंट ऑफ द नेशन। हमारी रियल आइडेंटिटी हमारा नेशन ही है।
और हमें हम जो भी वर्क करते हैं वो हमें हमारे नेशन के लिए ही करना चाहिए। एक्चुअली में हमारा शेड्यूल कैसा है, डिसेंडिंग ऑर्डर में है, असेंडिंग ऑर्डर में है कि पहले मैं, फिर मेरी फैमिली, फिर मेरी सोसाइटी, फिर मेरा जो एरिया है वो, फिर टाउन, फिर सिटी, फिर स्टेट, फिर कंट्री। और इस हिसाब से हम लोग हमारे गोल्स सेट करते हैं। पर जो रियल सिटीज़न होता है, जो रियल इंडियन होता है, वो पहले कंट्री के बारे में सोचता है। जैसे हमारे सोल्जर्स देख लो कि बॉर्डर पे अपनी जान को हथेली में लेके वो हमारी कंट्री के प्रोटेक्शन के लिए दिन रात हार्ड वर्क करते हैं। वो अपने फैमिली से दूर रहते हैं। क्यों? बिकॉज फॉर देम द नेशन इज़ द फर्स्ट। और हम लोग जो कंट्री के अंदर रहते हैं, हम नेशन के बारे में सोचते ही नहीं हैं। एंड दैट मेक्स डिफरेंस बिटवीन द प्रेस्टीज ऑफ द कंट्री, प्रॉस्पेरिटी ऑफ द कंट्री। अब जैसे अमेरिका, तो हम ड्रीमिंग करते हैं कि भाई मैं अमेरिका जाऊंगा बड़ा होके, या तो मुझे वहाँ जॉब मिल जाए, या तो मैं वहाँ पढ़ने जाऊँ। वाई वी आर थिंकिंग अबाउट अमेरिका? बिकॉज अमेरिका इज़ prosperous country, powerful nation, rich country. That is why we are dreaming about America. And what about our country? तो हमारी कंट्री के लिए हम बहुत सारे एक्सक्यूज़ निकालते हैं कि करप्शन बहुत है, पॉपुलेशन बहुत है, एजुकेशन बराबर नहीं है। अब जब हम हमारी कंट्री में ही फॉल्ट्स निकालेंगे तो फिर आगे का रास्ता हमें दिखाई नहीं देगा। फॉल्ट्स दिखने चाहिए, नो डाउट, डेफिनेटली, बट उसका ब्लेम किसी और के ऊपर करने के बदले अगर हम वो फॉल्स को कैसे फैसिलिटी में, अचीवमेंट में कन्वर्ट करें, दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। So in your textbook, whatever the details are given, we discuss first that it was Sunday. Rajul and his family members were helping each other clean the house. तो हाउस उनका था, इसलिए राजू वो अपनी फैमिली मेंबर्स को हेल्प कर रहा था हाउस क्लीन करने के लिए। यू मस्ट ऑल्सो बी हेल्पिंग योर फैमिली मेंबर्स व्हेन देयर इज़ अ वर्क टू बी डन। तो आप लोग भी आपके घर में हेल्प करते हो। आफ्टर हैविंग हिज टी, grandfather called Raju and said, a family is a social institution which the child comes into contact with first. क्योंकि जब हम बॉर्न होते हैं, हम बहुत छोटे होते हैं, हमें कुछ पता नहीं होता है, पर जैसे हमें कुछ पता चलने लगता है, जैसे हम कुछ समझना चालू करते हैं, तब सबसे पहले हम हमारी फैमिली के बारे में जानना चालू करते हैं। अब हमारी फैमिली में सपोज़ रोज़ भगवान की पूजा होती है, भक्ति सॉन्ग बजते हैं, सब लोग एक दूसरे को रिस्पेक्ट देते हैं, सब लोग एक दूसरे से प्यार से रहते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं। अगर ये हम देखते हैं तो वो हम सीखते हैं। पर जैसे रोज़ हमारे घर में झगड़ा होता है, बात बात पे सब रूठ जाते हैं, बैड वर्ड्स यूज़ होते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में हमारा डेवलपमेंट भी उसी डायरेक्शन में जाता है। तो हमें कैसे खाना है, कैसे बैठना है, कैसे सोना है, कैसे रिस्पेक्ट देना है, ये जो फर्स्ट लेसन ऑफ द लाइफ है वो हम हमारी फैमिली से सीखते हैं। द चाइल्ड लर्न अबाउट सोसाइटी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम फ्रॉम द फैमिली। देयरफॉर अ फैमिली इज कॉल्ड द स्कूल ऑफ कल्चर एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। तो हमारी जो कुछ भी पर्सनालिटी है, हमारा बोलने का तरीका है, हमारा बिहेवियर है, ये सब हम हमारे फैमिली से लेके आते हैं। अब देखो आपके क्लास में अलग अलग नेचर के बच्चे हैं। कोई बहुत शरारती है, कोई बहुत झूठ बोलता है, कोई बहुत बैड वर्ड्स बोलता है, कोई बहुत ही टैलेंटेड है, कोई बहुत ही एकदम शांत बैठा है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स फैमिली से आती है। इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सोसाइटी। तो सोसाइटी का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है फैमिली। फैमिली से जो हम सीखना चालू करते हैं, फिर धीरे धीरे के हम थोड़े बड़े होते हैं, फिर घर से बाहर जाते हैं, सोसाइटी में खेलना चालू करते हैं, वहाँ से कुछ सीखते हैं। फिर स्कूलिंग ईयर चालू होते हैं, जूनियर के जी, नर्सरी, जूनियर के जी, सीनियर के जी, फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टैंडर्ड। तो ऐसे स्कूल में आते हैं, फिर स्कूल में से हम कुछ और सीखते हैं। पर हमारे जो सबसे पहले टीचर है वो हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं, हमारे मम्मी पापा, दादा दादी, ये सब। अ फैमिली ऑल्सो टीचेस अस दैट व्हाट आर म्यूचुअली डिपेंड ऑन ईच अदर। तो फैमिली से हमें पता चलता है कि भाई हम एक दूसरे के ऊपर
किस तरह डिपेंडेंट है, तो म्यूचुअली डिपेंडेंट है, यानी अंडरस्टैंडिंग के साथ। ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ द फैमिली ought टू हेल्प ईच अदर। सब लोग एक दूसरे के बुरे वक्त में एक दूसरे को हेल्प करते हैं, एक दूसरे के काम में आते हैं। सोसाइटी इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन एंड इट बिगिंस विद द फैमिली। तो ये पूरी जो सोसाइटी है जहाँ पे हम रहते हैं, जॉब करते हैं, पढ़ते हैं, ये पूरी सोसाइटी का जो बेस है वो है कोऑपरेशन, एक दूसरे को हेल्प करना, ना ही कि एक दूसरे के साथ लड़ना। तो आप भी स्कूल में देखो कि क्लास में किसी के साथ फाइटिंग करते हो, किसी के साथ झगड़ा करते हो, पर कभी आपने सोचा है कि जिससे झगड़ा किया वो अगर आप बड़े हो गए और कभी कोई कुछ उससे ही काम आपको निकला तो वो आपकी हेल्प करेगा? तो वो सोचेगा कि नहीं, ये लड़के ने मुझे 6 स्टैंडर्ड में फंसा दिया था, अब मैं इसको हेल्प नहीं करूँगा। पर आपने उसको हेल्प की होगी कभी कोई भी उसके मुश्किल वाले टाइम में, तो वो आपको याद रखेगा कि हाँ, ये लड़का अच्छा था, वो टाइम पे भी हेल्प करता था, इसके साथ मैं बिजनेस कर सकता हूँ, या तो मैं इसको जॉब पे रख सकता हूँ, या कोई भी XYZ वर्क कर सकता हूँ। There is always a mutual impact made by the ideas and attitudes of family members. तो कोई भी म्यूचुअल इम्पैक्ट कब आती है? तो एक एटीट्यूड से आती है और दूसरे आइडियाज से आती है। वी लर्न एटिक्वेट एंड मैनर्स फ्रॉम द फैमिली। तो हम जो भी हमारा कल्चर है या तो जो भी हम कुछ करते हैं वो सब हम हमारे फैमिली से सीखते हैं। जैसे हमारे फैमिली में हमें सिखाया गया हो कि भाई आपसे बड़ा कोई भी हो तो आप उसको रिस्पेक्ट दो, या तो आपके टीचर्स को रिस्पेक्ट दो, तो आप रिस्पेक्ट दोगे। पर आपको ये सिखाया ही नहीं है तो आप आपसे कितना भी बड़ा आदमी आपके सामने आ जाएंगे, आप उसको इंसल्ट कर दोगे, क्योंकि आपको वो सिखाया नहीं गया है। द आइडियोलॉजी ऑफ अ फैमिली हेल्प्स इन मेकिंग डिसीजन विच मे और मे नॉट बी एक्सेप्टेबल। तो फैमिली की हेल्प की वजह से हम कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। द फैमिली एंड स्कूल आर इंस्टीट्यूशन विच शेप्स अस into becoming better citizens and living a better life। तो अगर आपको बेटर सिटीजन बनना है तो वो जो ट्रेनिंग है वो आपके फैमिली और आपके स्कूल में से होती है। When a child is born into family, he is nourished by his parents. After some time, he establishes a relationship with the neighbors. Then he goes to school। तो सबसे पहले जब आप बॉर्न हुए आपके पेरेंट्स ने आपका ध्यान रखा, फिर थोड़े बड़े हुए आपके जो नेबर्स है उसके साथ के कांटेक्ट में आप आए, फिर आप आगे थोड़े और बड़े हुए तो आप स्कूल जाने लगे। एज ही ग्रोज कॉन्स्टेंटली इमिटेट्स हिज एल्डर टिल ही बिकम्स एन एडल्ट। तो जब तक आप बड़े होते हो तब तक आप पेरेंट्स की बात सुनते हो, फिर पेरेंट्स जब बड़े हो जाओ तो फिर आप अपने डिसीजंस खुद लेना चालू करते हो। Meanwhile, he comes into contact with many social institutions which help to mold and develop his personality। तो छोटे से बड़े होने की पूरी प्रोसेस में हम बहुत सारे लोगों के कांटेक्ट में आते हैं और उसकी वजह से हमारा डेवलपमेंट होता है। तो यहाँ से एक अच्छे सिटीज़न बनने की प्रोसेस चालू होती है। अब फैमिली का हमारे पीछे क्या इम्पोर्टेंस है? तो फैमिली इज़ अ सोशल इंस्टीट्यूशन दैट ओवरसीज द बेयरिंग एंड राइजिंग ऑफ चिल्ड्रन। तो यहाँ से हम हमारे सबसे पहले लेसन सीखते हैं, फिर रिलेशन क्या होते हैं वो हमें वहाँ से पता चलता है, फिर एक दूसरे को सपोर्ट कैसे करना है, एक दूसरे को हेल्प कैसे करनी है, ये सब हमें फैमिली से पता चलता है। तो सबसे पहले चाहिए एक फैमिली। एक अच्छा सिटीज़न बनने के लिए एक अच्छी फैमिली होना बहुत ही ज़रूरी है। अच्छी फैमिली होगी तो अच्छे सिटीज़न बनोगे, उसके चांसेस ज़्यादा है। पर फैमिली अच्छी नहीं होगी और अच्छे सिटीजन्स बनोगे, उसके चांसेस बहुत ही कम है। इफ़ अ चाइल्ड इज गिवन द अपॉर्चुनिटी टू थिंक एंड टेक डिसीजंस फ्रीली, ही विल बिकम अ गुड सिटीजन। तो सिटीजन कब बनोगे आप अच्छे? कि आपको आपकी जो थॉट्स है वो एक्सप्रेस करने के लिए फ्रीडम मिले, यानी फिर मार पीट के आपको पढ़ाने बिठाना पड़े या तो फिर ज़बरदस्ती से आपके पास कुछ काम करवाना पड़े तो उसकी नेगेटिव इफ़ेक्ट होती है। Discipline is very important thing in life, but suppression and harassment, that is not called discipline। तो यहाँ पे
जो भी हमारे फैमिली के चिल्ड्रंस है उनको फ्रीडम भी हमें देनी चाहिए. Later on, when he become an adult, he will think independently in the social and political shapes of life and work according to the understanding of such situation. फिर जैसे आप बड़े होगे तो आप अपने हिसाब से डिसीजन लोगे और अपनी स्किल अपने टैलेंट के हिसाब से आप वर्क करना चालू करोगे जो फाइनली हमारी कंट्री के लिए बेनिफिशियल होगा. जैसे आप डॉक्टर बने या इंजीनियर बने या साइंटिस्ट बने तो ये आपको बेनिफिट, कंट्री को बेनिफिट है, आपका तो बेनिफिट है ही, पर साथ में कंट्री का बेनिफिट है. पर अगर आप अच्छे से पढ़े और फिर बाद में टेररिस्ट बन गए तो ये ट्रेनिंग आपको कहाँ से मिलनी चाहिए? फैमिली से, कि भाई क्या बनना है हमें. आप स्कॉलर हो, आप टैलेंटेड हो, पर वो टैलेंट को कहाँ यूज़ करना है और किसके लिए यूज़ करना है, ये जो आपको सीखने को मिलता है वो सबसे पहले फैमिली से मिलता है, फिर स्कूल में से आपको ये मिलता है. Rajul asked his grandfather, Dadaji, should the duties performed by each person be for his family alone? Family alone? Dadaji said, not at all. You were born into our family and will remain a member of this family. तो जब आप कोई फैमिली में बॉर्न हुए तो आप लास्ट तक वही फैमिली के मेंबर रहोगे. इट इज़ द ड्यूटी ऑफ योर मदर एंड फादर टू नरिश एंड प्रोटेक्ट यू. तो जब आप छोटे होते हो तो ये सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके मम्मी पापा की होती है कि आपको प्रोटेक्ट करें सभी चीज़ों से. जैसे बीमारी से प्रोटेक्ट करे, आप कुछ गलत ना सीखो उससे प्रोटेक्ट करे, आपको एक अच्छे सिटीज़न बनने की ट्रेनिंग दे. और वही फाइनली कंट्री के लिए भी बोला जाता है कि जब आप पढ़ रहे हो तो आपको पढ़ाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी कंट्री की है. क्योंकि जब आप अच्छा पढ़ोगे, आप डॉक्टर इंजीनियर साइंटिस्ट कुछ भी बनोगे XYZ, और आप जब अच्छा वर्क करोगे तो फाइनली वो बेनिफिट हमारी कंट्री को होता है. सिमिलरली योर फर्स्ट ड्यूटी इज़ टू रिस्पेक्ट योर फैमिली, फॉलो द कस्टम एंड ट्रेडिशन एंड ऑब्जर्व ऑल रूल्स एंड रेगुलेशन. जब आपकी फैमिली आपको नरिश करती है, आपको बड़ा करती है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या आती है कि आप आपके फैमिली को रिस्पेक्ट दो, उसके जो भी कस्टम्स और ट्रेडिशंस है उसको फॉलो करो, जो भी रूल्स और रेगुलेशंस है उसको ऑब्जर्व करो. अब यही चीज़ कंट्री के लिए भी आती है कि आप इंडिया में रहते हो तो भाई आप इंडिया के जो भी रूल्स रेगुलेशंस है, लॉ एंड ऑर्डर है, आप उसको फॉलो करो. आप आपकी ड्यूटी समझो कि भाई मैं स्टूडेंट हूँ तो अभी मेरा क्या काम है, तो मेरा अभी एक ही काम है कि मैं अच्छे से पढूँ. अब फिर मैं एक्सक्यूज़ करूँगा कि नहीं मुझे ये नहीं आता है, ये तो बहुत लंबा आंसर है, मैं इसको कैसे याद रखूँ, इस इतना सारा लिखना है मुझे, मैथ्स तो इतना डिफ़िकल्ट है, साइंस तो इतना डिफ़िकल्ट है. अगर ऐसा एक्सक्यूज़ करेंगे और नहीं सीखेंगे तो फाइनली हमारी कंट्री को लॉस हो जाएगा इससे. ये ऐसी बात है कि आप फैमिली में मेंबर तो हो, पर फैमिली क्या चाहती है आपसे वो आप समझ नहीं पा रहे हो. Along with being a member of the family, you are also a student of your school towards which you have duties to perform. तो जैसे आप फैमिली के मेंबर हो वैसे आप स्कूल के भी स्टूडेंट हो. अब स्कूल के जो भी रूल्स रेगुलेशन है वो आपको कैसे भी करके फॉलो करने ही है, क्योंकि तभी आप अच्छे स्टूडेंट बनोगे. Maintaining good relationship with your co-student and having a healthy attitude towards school are some of them. तो स्कूल में एज ए स्टूडेंट हमारी ड्यूटीज़ क्या है, तो जिसके साथ हम पढ़ते हैं, हमारा क्लासमेट है या तो हमारे स्कूलमेट है, उसके साथ हम कोऑपरेशन रखें, अच्छा रिलेशन रखें, सबको प्यार से बुलाएं, हेल्दी एटीट्यूड रखें, कभी भी डिप्रेशन में ना आ जाए या डर नहीं जाए कि मेरा क्या होगा, मुझे ये नहीं आता है. सब काम जो है वो टाइम टू टाइम करें, अपना यूनिफॉर्म से लेके बैग सब वर्क खुद करें. आपको पता होना चाहिए कि कौन सा पीरियड है, क्या होमवर्क है, कब ले जाना है, तो इसकी अलर्टनेस आपकी खुद की होनी चाहिए. फिर ऐसा हो कि भाई आपकी मम्मी आपका बैग पैक करती है, वो टाइम टेबल देखती है, वो आपके पीछे पड़ी रहती है कि भाई होमवर्क कर लो, होमवर्क कर लो. तो ये एक अच्छे स्टूडेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है. अच्छा स्टूडेंट वही होगा जो अपना सब वर्क खुद करेगा. तो आप अपने आप को जस्टिफाई करो कि आप अच्छे स्टूडेंट में आते हो कि नहीं आते हो, कौन सी कैटेगरी में आते हो. अपार्ट फ्रॉम दिस, अ पर्सन हु इज़ बोर्न इन इंडिया हैज़ ड्यूटीज़ टू परफॉर्म टूवर्ड्स हिज विलेज, तालुका, डिस्ट्रिक्ट, नेशन एंड द वर्ल्ड एज अ सिटीज़न. तो यहाँ पे सिटीज़न का मीनिंग बहुत ही ब्रॉड दिया है. आप देखो यहाँ पे अगर आप ये ग्राफ देख रहे हो तो यहाँ फैमिली से चालू होता है, फिर विलेज आता है, फिर तालुका, फिर डिस्ट्रिक्ट, फिर स्टेट, फिर कंट्री.
लास्ट वर्ड भी आता है, यानी पूरा वर्ल्ड आपकी फैमिली है। हमारे शास्त्रों में लिखा है वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरी दुनिया फैमिली है। तो ये कॉन्सेप्ट को हमें एक्सेप्ट करके उसके पीछे वर्कआउट करना पड़ता है कि भाई पूरी दुनिया कब फैमिली बनेगी। तो जब हम फैमिली मानेंगे तब। अब जैसे आप जिस घर में रह रहे हो वहाँ पे अगर आपको आप ही नहीं मानते हो कि भाई आप उस फैमिली के मेंबर हो, तो फिर आप कहाँ से, वो फैमिली आपको कितना भी प्रोटेक्ट करे, आप कैसे अपने आप को सेफ रख सकते हो? क्योंकि आप खुद ही नहीं मानते हो कि भाई मैं ये फैमिली का मेंबर हूँ या तो ये फैमिली मेरी है, तो आपको कैसे ये रियलाइज़ होगा कि एक्चुअली में ये मेरी ही फैमिली है और इसके लिए मेरी बहुत सारी ड्यूटीज़ हैं। वैसे ही एक कंट्री के बारे में है कि जब तक आप खुद ही नहीं मानोगे कि ये कंट्री आपकी है, तब तक आप ये कंट्री के लिए कुछ नहीं कर सकते हो। और जब आप पूरी दुनिया के लिए ऐसा मानोगे कि हाँ ये दुनिया मेरी ही है, दिस इज़ माई अर्थ, माई प्लेनेट, तो फिर वहाँ पे आप सब सोचोगे कि भाई मैं पॉल्यूशन कर रहा हूँ, मैं जो भी लीटर इधर उधर फेंक देता हूँ, मैं वाटर वेस्ट करता हूँ, तो ये मैं किसका लॉस कर रहा हूँ, मेरा कर रहा हूँ कि पूरी दुनिया का कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हमें ऐसे वाइडली सोचना है। अब जब हम ऐसा सोचते हैं तो फिर हम आगे जाके अच्छे सिटीज़न बनते हैं, क्योंकि अब यहाँ पे हम हमारे बारे में नहीं सोच रहे। जनरली यहाँ पे अगर आप देखो तो जैसे मैंने बोला कि सबसे पहले हम हमारे बारे में सोचते हैं, पर यहाँ पे एक्चुअली में जब हम बड़े हो जाए, समझने लगे, जैसे अब आप 6th स्टैंडर्ड में आप समझते हो, तो आपको सबसे पहले अपने प्लेनेट के बारे में सोचना है कि मैं ऐसा क्या इनोवेटिव वर्क करूँ कि मैं मेरे प्लेनेट को हेल्प कर सकूँ। क्या मैं पानी बचाऊँ, वाटर को सेव करूँ, या तो मैं एयर पोल्यूशन नहीं करूँ, या तो मैं नॉइज़ पोल्यूशन नहीं करूँ। फिर उसके बाद में आपको नेशन के बारे में सोचना है कि भाई नेशन मेरा है, अब ये नेशन को मुझे नंबर 1 बनाना है, पर ये नेशन को मैं कैसे नंबर 1 बनाऊँ? तो अगर मैं अच्छे से पढ़ूँगा तो मैं नया कुछ आइडिया लाऊँगा, कुछ नया इन्वेंट करूँगा, डिस्कवर करूँगा। इस तरह से मैं अपने नेशन को हेल्प करूँगा। फिर आपको सोचना है आपके स्टेट के बारे में कि भाई मैं मेरे स्टेट को कैसे हेल्प करूँ, फिर डिस्ट्रिक्ट, फिर तालुका, फिर विलेज। और ये अगर सब लोग सेटिस्फाई है, अगर आप अपने इन लोगों के लिए कुछ कर दिया, तो फाइनली आपकी फैमिली हैप्पी ही रहेगी। क्योंकि फैमिली है तो अर्थ के ऊपर ही ना, ऐसा तो नहीं है कि कोई और प्लेनेट के ऊपर है। तो यहाँ पे हमारा थिंकिंग ऊपर से नीचे की तरफ होना चाहिए, ना ही कि नीचे से ऊपर की तरफ। हमें सबसे पहले हमारी कंट्री, हमारी दुनिया के बारे में हमें सोचना चाहिए। तो ये जब आप करते हो, ऐसा आपका एटीट्यूड बनता है, तब आप जाके फ्यूचर में रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बनते हो। अब हम बात करते हैं कि सिटीज़नशिप और सिटीज़न क्या है और क्या क्या उसके प्रूफ है। तो यहाँ पे मैंने एक इलेक्शन आईडी कार्ड का एक फ़ोटो आपके स्क्रीन के ऊपर रखा है, जो आपके टेक्स्ट बुक में है। तो ये प्रूव करता है कि आप इंडिया के सिटीज़न हो। अब आप सिटीज़न हो, इसलिए आपको 18 ईयर्स के बाद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने एक और राइट दिया है, दैट इज़ कॉल्ड राइट फॉर वोट, राइट टू वोट। पर हमारे यहाँ आप देखो तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि इलेक्शन के दिन वोटिंग करने ही नहीं जाते हैं, कोई ना कोई एक्सक्यूज़ निकाल देते हैं कि गवर्नमेंट तो ऐसी ही होती है, करप्टेड ही होती है, वोट मैं एक वोट नहीं दूंगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा। पर बहुत फ़र्क पड़ जाता है, क्योंकि ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। यहाँ पे सिटीजन्स ऑफ द नेशन आर इन द सेंटर ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में सेंटर में सिटीजन्स ही होते हैं। अगर जब हम वोट देते हैं तो वी आर फाइंडिंग अ स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट, हेल्दी गवर्नमेंट, एंड दैट गवर्नमेंट वर्क फॉर आवर कंट्री, फॉर आवर सेल्फ। पर जब हम वोट देने नहीं जाते तो ये लॉस हो जाता है कंट्री का, क्योंकि एक इलेक्शन में मिलियंस ऑफ रुपीज़ का एक्सपेंस होता है, पूरी एक दिन की छुट्टी दी जाती है, कितने एम्प्लॉय उसके पीछे होते हैं, कितनी पुलिस फोर्स उसके पीछे होती है, कितना एक्सपेंस होता है। अब यहाँ पे वोट नहीं देंगे तो फिर स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट कैसे बनेगी? अब जब हमारे प्राइम मिनिस्टर अगर पढ़े लिखे हो, एजुकेटेड हो, साइंटिस्ट या डॉक्टर टाइप हो, तो उनकी सोच बहुत अलग होती है। और जब कोई अनपढ़ सिटीज़न, अनपढ़ जो कोई होता है, वो अगर प्राइम मिनिस्टर बन गया तो उसकी सोच उस तरह की होती है। तो हमारे हाथ में है कि हमें हमारी कंट्री को कहाँ पे ले जाना है। अगर हमें इंडिया को नंबर 1 बनाना है तो फिर हमें डेफिनेटली
वोटिंग करना ही पड़ेगा, एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट ढूंढनी ही पड़ेगी, और ये हमारी एक ड्यूटी है जिसको हमें फुलफिल करना है। ये डेमोक्रेसी है, इसलिए यहाँ पे इतना फोर्स नहीं होता है कि वोट देने जाओ। अदरवाइज तो अगर रूल ऐसा बन जाए कि जो वोट नहीं देगा उसके सब राइट्स डिनाइड हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो फिर सब लोग जाएंगे देने। पर क्यों रूल की ज़रूरत पड़े? जब हम रूल ब्रेक करेंगे, कंडीशंस के अगेंस्ट जाएंगे, तो रूल बनते हैं, तो लॉस बनते हैं। पर अगर हम जो भी टर्म्स है, जो हमारी ड्यूटीज़ है, उसको टाइम टू टाइम फुलफिल करेंगे तो नए लॉस बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये है इम्पोर्टेंट थिंग कि सिटीज़न कौन है। तो हम मेंबर ऑफ अ कम्युनिटी हु ओ लॉयल्टी टू अ गवर्नमेंट एंड इन टर्न आर एंटाइटल टू द प्रोटेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। तो लॉयल्टी आपको दिखानी पड़ेगी कंट्री के लिए, गवर्नमेंट के लिए। तो आफ्टर लिसनिंग टू एवरीथिंग इज दादाजी टोल्ड हिम, Rajul joined his mother in the cleaning of a cupboard where he found a card of one of the shelves. He said, "What is this, mummy?" The mother replied, "This is the voter ID card of your father. It has some information and his photograph on it. You come to know about the residential proof of the owner of the voter identity card too. The voter identity card must be with the person as a document for voting in India. Each and every citizen who is 18 years and above has the right to vote. The voter identity card is the authentic document of being a citizenship." तो ये जो वोटर आइडेंटिटी कार्ड है, ये सिंपल डॉक्यूमेंट नहीं है, दिस इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट। अब तो आधार कार्ड भी आ गया है, जैसे मैंने आपको पासपोर्ट भी स्टार्टिंग में दिखाया। तो ये डॉक्यूमेंट से प्रूफ होता है कि आप इंडिया के सिटीज़न हो। अब सपोज़ आप कोई फॉरेन ट्रिप पे गए, वहाँ पे अगर आपका पासपोर्ट गुम हो गया तो वहाँ पे ये डिफ़िकल्ट है कि आप प्रूव करो कि आप इंडिया से आए हो। वो लोग ऐसा भी समझ सकते हैं कि आप टेररिस्ट हो और आपको अरेस्ट करके जेल में भी डाल दे। पर अगर आपके पास आपका पासपोर्ट है या आपकी कोई आइडेंटिटी है, तो ये प्रूव होता है कि आप यहाँ के हो। फिर वो गवर्नमेंट, इंडिया की गवर्नमेंट से कांटेक्ट करके आपके बारे में सब इन्फॉर्मेशन निकालेगी, और जब पता चलेगा कि नहीं, इज़ द स्कॉलर ऑफ द कंट्री, वो बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा ह्यूमन बींग है, उसको वो कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो ही नहीं सकता है, तो वो गवर्नमेंट आपको रिलीज़ कर देगी। पर अगर कोई आइडेंटिटी नहीं रही तो फिर वो गवर्नमेंट को रिलीज़ नहीं करती है। After seeing the voter identity card, Rajul was curious to know about the meaning of the term citizen and citizenship. तो राजू ने जब ये आई कार्ड अपने पापा का देखा तो वो क्यूरियस हो गया कि उसे जानना था कि भाई ये सिटीजन और सिटीजनशिप है क्या। He then asked his grandfather for an explanation of the same. His Dadaji told him in detail that the word citizen is frequently used in democracy and added that it is often used in politics by the law, the constitution, and in the speeches of political leaders. He knew that Raju would want to know more about the term citizenship. A person living in a village, city, or a town is called a citizen, but this meaning is limited. तो राजुल क्यूरियस हो गया, पर उसके दादाजी ने उसको बोला कि भाई सिटीज़न जो वर्ड है वो डेमोक्रेसी में यूज़ होता है, और वो वर्ड पॉलिटिक्स में या तो लॉ के लैंग्वेज में, या तो कॉन्स्टिट्यूशन में, या तो कोई लीडर जो होता है उसकी स्पीच में बहुत सिंपली यूज़ होता है। तो सिटीज़न यानी हर कोई जो इंडिया में रहता है, वो हर कोई। पर यहाँ पे भी एक ट्विस्ट है कि इंडिया में रहने वाले सब लोग इंडिया के सिटीज़न नहीं होते। वो हम जब सिटीज़नशिप की बात करेंगे तब मैं आपको समझाऊंगा। पर इन शॉर्ट अगर सिटीज़न कौन, तो अगर हमें ये क्वेश्चन का आंसर जानना है सिंपल टर्म में अगर देखें तो जो भी पर्सन है वो कोई विलेज, टाउन या तो सिटी में रहता है तो उसको सिटीज़न बोलते हैं। पर बस इतना रहने से ही वो सिटीज़न बन जाएगा तो नहीं। तो सिटीज़न का टेक्निकल मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है। अब यहाँ 6th स्टैंडर्ड में आपको सब डेफिनेशंस लर्न करनी पड़ेगी। अगर आपके पास जीएससीबी बोर्ड की टेक्स्ट बुक है तो पेज नंबर 15 पे डार्क ब्लैक लाइन में जो लिखा है उसको आपको अंडरलाइन करना है। जनरली स्पीकिंग, अ पर्सन हु लीगली बिलोंग्स टू अ कंट्री एंड हैज़ राइट एंड प्रोटेक्शन ऑफ दैट कंट्री इज़ अ सिटीजन ऑफ दैट कंट्री।
तो ये डेफिनेशन है और ये आपको अंडरलाइन करके आपके नोटबुक में आपको लिख लेनी है अभी के अभी पहले, क्योंकि आप 6 स्टैंडर्ड से लेके हायर जितने भी आप पढ़ो 10th तक 11th 12th तक, तो ये डेफिनेशंस एग्जाम्स में आती है और उसके 2 मार्क्स होते हैं। तो शायद ये साल ही आपको ये पेपर स्टाइल में डेफिनेशन आ जाए। तो ऐसी डेफिनेशंस आती है। अब डेफिनेशंस में क्या होता है कि एक भी वर्ड इधर का उधर नहीं होना चाहिए, जो एग्जैक्टली टेक्स्ट बुक में प्रिंट है वही आपको डिस्क्राइब करना है आपके सप्लीमेंट्री में, तो ही आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने एक भी वर्ड वहाँ से निकाला या तो एक भी वर्ड आपने खुद का ऐड किया, तो वहाँ पे अपने आप वो डेफिनेशन रॉन्ग हो जाती है। तो इसका आपको अभी ध्यान रखना है। तो सिटीजन की डेफिनेशन क्या है कि लीगली बिलोंग्स टू अ कंट्री एंड हैज़ राइट एंड प्रोटेक्शन ऑफ दैट कंट्री, यानी फंडामेंटल राइट्स भी होने चाहिए और कंट्री का प्रोटेक्शन भी होना चाहिए, तब जाके वो सिटीजन ऑफ द कंट्री बोला जाता है। अब फंडामेंटल राइट्स उसको ही मिलते हैं जो सिटीजन होते हैं, जो सिटीजन नहीं होते हैं उनको फंडामेंटल राइट्स नहीं मिलते। An Indian citizen has a deep love for his country and takes pride in the fact that he is an Indian. तो हमारे इंडिया की अगर बात करें तो 5000 ओल्ड कंट्री है हमारा। 5000 बहुत सारे रूलर्स आए गए, बहुत सारे डायनेस्टीज आए, बहुत सारे कल्चर्स आए, पर इंडिया आज की डेट में भी ये वर्ल्ड में है, वर्ल्ड मैप में इंडिया कंट्री है। तो इसका रीज़न है कि इंडिया के लोग सिटीजन बहुत ही कंट्री के लिए प्राइड रहता है। हमें प्राउड होगा जब आप जैसे जैसे ऐसे आगे पढ़ोगे तो आपको इंडिया की प्रॉस्पेरिटी के हिस्ट्री आपको पता चलेगी कि क्यों इंडिया की प्रॉस्पेरिटी इतनी थी और क्यों ये यूरोपियंस इंडिया में आए, क्यों ब्रिटिश रूल इंडिया में चालू हुआ, ये सब आपको पढ़ना है आगे जाके। He cooperates with other citizens and serves the nation and in return the government gives him right to enjoy. तो अगर आप इंडिया के सिटीज़न हैं तो हर एक इंडिया के सिटीज़न कंट्री के लिए कुछ ना कुछ करते हैं और उसके बदले में गवर्नमेंट उनको राइट्स देती है। कैसे राइट्स देती है? तो राइट टू स्पीच, राइट टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन, राइट टू एक्सप्रेशन, ऐसे बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स है जो आप आगे के चैप्टर में हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। द इंडियन गवर्नमेंट टेक्स केयर ऑफ द लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ ऑल नॉन रेसिडेंट इंडियंस एज वेल। तो गवर्नमेंट जो इंडिया की वो सिटीजन्स जो है उनकी ही प्रोटेक्शन नहीं करती है, पर जो नॉन रेसिडेंट एनआरआई जिसको बोलते हैं, नॉन रेसिडेंट इंडियन, उनकी भी प्रॉपर्टी और उनकी भी जान की प्रोटेक्शन हमारी गवर्नमेंट करती है। अब आइडल सिटीजन किसको बोलेंगे? तो आइडल सिटीजन नेवर कॉसेस हार्म टू द कंट्री और नेशन, यानी आइडल सिटीजन वही होता है जो अपनी कंट्री को कोई भी नुकसान ना पहुंचाए, कोई भी पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज ना करे, कोई भी वायलेंस क्रिएट ना करे। ऐसे सिटीजन को आइडल सिटीजन बोला जाता है। अब ये आपके ऊपर है डिपेंड कि फ्यूचर में आपको कैसा सिटीजन बनना है। अगर आइडल सिटीज़न बनना है तो आपको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता होनी चाहिए कि मुझे अपने फैमिली के लिए क्या करना है, कैसे सबको रिस्पेक्ट देना है, फिर स्कूल में जब जाता हूँ तो मुझे क्या करना है, कैसे टीचर्स को रिस्पेक्ट देना है। जब मैं सिटीज़न बनूँगा तो मैं कैसा सिटीज़न बनूँगा और कैसे मैं अपनी कंट्री को रिस्पेक्ट दूँगा, ये जो भी ट्रेनिंग है वो अपने फैमिली और स्कूल से आपको मिलती है। अब एज ए स्टूडेंट आप स्कॉलर हो तो आप अच्छे सिटीज़न डेफिनेटली बनोगे, और एज ए स्टूडेंट आप किसी को ओबे नहीं होते हो तो फ्यूचर में भी यही इम्पैक्ट रहेगी। फिर आपको कोई क्राइम कर दोगे तो जेल में जाना पड़ेगा और पूरा आपका फ्यूचर स्पॉइल हो जाएगा। तो इन फ्यूचर यू ऑल बिकम अ गुड सिटीजन ऑफ द कंट्री एंड मेक दिस कंट्री एज द पावरफुल नेशन ऑफ द वर्ल्ड। तो आज के वीडियो में हम यहाँ तक ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सिटीज़नशिप के बारे में बात करेंगे। अभी तक जो हमने बात की वो सिटीज़न की बात की कि सिटीज़न कैसा होना चाहिए और किसको हम सिटीज़न बोलेंगे। अब सिटीज़नशिप की बात करेंगे कि वो क्या है और इंडिया की सिटीज़नशिप कैसे हम ले सकते हैं। तो तब तक आपको ये वीडियो को एक बार और रिफ़र करना है, टेक्स्ट बुक साथ में लेके बैठना है और जो भी डिटेल्स मैंने बताई है वो आपको देखनी है, उसको याद रखना है और मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ में
बेल आइकन को भी प्रेस करना है। इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी हो या कोई भी आपके मन में डाउट हो या आप कोई सजेशन देना चाहते हो तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। आप मुझे टेक्स्ट करोगे, मैं उसका आपको रिप्लाई दूंगा। ठीक है, तो इस तरह से हम अपने डाउट्स क्लियर करेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट के लिए आपको चैनल का बेल आइकन प्रेस करना पड़ेगा कि इसका जब नेक्स्ट पार्ट 2 रिलीज़ करो तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ठीक है, तो तब तक स्टे होम, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच।